Hello students, I am Monica Soral from MA International School, Nayagaon. Today we will be doing the 6th chapter from the book First Flight, The 100 Dresses Part 2. Yes, today we will be studying the chapter The 100 Dresses Part 2. Now in this chapter, see, in the first part we had learned that there was a competition held between boys and the girls. The boys had to make the motorboats and the girls had to make the dress designing. They had to do the designing dresses they had to draw. So while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason's note. Now Miss Mason was the teacher and her note was brought in the class. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Now she read that note herself first. Miss Mason, that note had come from Miss Mason and she just read it first. And then again she read, like she was जैसे किसी चीज़ के लिए सरप्राइज होते हैं ना, कुछ चीज़ पढ़ते हैं अपन और कुछ ऐसा लिखा होता है कि अपन सोचते हैं क्या ये क्या हुआ, उस तरह से मिस मैसन ने देखा और फिर उन्होंने क्लैपिंग करी. नाउ अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स. नाउ शी टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू गो बैक टू देयर सीट्स. व्हेन द शफलिंग ऑफ द फीट एंड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मैसन सेड, आई हैव लेटर फ्रॉम वांडा's फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. नाउ जो लेटर आया था वो आया था वांडा के फादर का. नाउ फर्स्ट शी टोल्ड ऑल द क्लास टू सेटल डाउन क्वाइटली सो दैट यू कैन लिसन दैट व्हाट आई एम गोइंग टू रीड अबाउट. नाउ वांडा का फादर्स लेटर तो एवरीवन वाज लाइक व्हाट ही माइट हैव रिटन. दे वर लाइक वांटेड टू हियर. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Everyone listened closely and Miss Mason read the brief note. Now everyone was first, they wanted to hear. उनको सुनना था कि वांडा के फादर ने ऐसा क्या लिखा है, क्योंकि सब लोगों को ताज्जुब हुआ कि उनके फादर का लेटर वांडा आ नहीं रही थी. उन्हें जब से वो ड्रेस का डिज़ाइनिंग का वो कंपटीशन हुआ एंड शी हैड वन द कंपटीशन, आफ्टर दैट शी डिडंट कम टू द स्कूल. सो सब लोगों को ये था कि वो आ नहीं रही है, उसके फादर ने ऐसा क्या लिखा. और मिस मैसन ने बोला कि ये सबको सुनना ज़रूरी है. तो एवरीवन वाज लाइक वेटिंग ईगरली टू हियर व्हाट वाज द नोट. डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. Jack also. Now we move away to big city. No more holler, Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petrinsky. Now see what her father had written. उन बच्चों का जो भाई बहन थे उनका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, उनके नाम का मजाक उड़ाया था. तो वो मिस वांडा ने क्या बोला कि अब ये इस स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, हम बिग सिटी में फिर शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ़नी नेम्स होंगे, तो उनके पर कोई उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, उनके लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं. तो वी आर शिफ्टिंग देयर. This was written by the father. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. अब Miss Mason ने ये पढ़ा तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी ना. उन्होंने बच्चों को देखा एकदम से कि लाइक उनकी जो साइलेंस थी वही एक्चुअली बता रही थी बच्चों को कि उनको ये लगा कि देखो तुम लोगों ने क्या करा एक स्टूडेंट के साथ जिसको ये जगह ही छोड़ के जाना पड़ा. Her reaction was that way. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtfulness. I know that all of you feel the way I do. That this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. अब उनने क्या बोला, उन्होंने डायरेक्टली बच्चों को डांटा नहीं, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं किया होगा, ये हो गया होगा उनके नाम को लेके, बट उन्होंने बोला कि ये चीज़ लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अस द पर्सन हैड टू लीव एंड गो अवे. तो वो चीज़ उनको बहुत बुरी लगी. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. मैरी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड इन द वर्क. अब पहला चैप्टर क्या था, पहला पीरियड जो था स्टडी पीरियड था मैथ्स का, बट मैरी को वो चीज़ पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई बिकॉज अगेन हर माइंड वेंट वेयर दैट वांडा हैड लेफ्ट द स्कूल. एंड
कहीं पर वो अपने खुद को अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि उसको हमारा ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ा. तो दैट शी डिडंट लाइक. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉय लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ. अब मैडी को तो कभी भी पसंद नहीं आता था वो कि पैगी उसको बार बार पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, बट उसको सपोर्ट करना पड़ता था बिकॉज शी वॉज अ बेस्ट फ्रेंड. सो समवेयर अपन बोलते ना गिल्टी होता है कि उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की वजह से एक तरह से वो इस जगह को छोड़ के चली गई. बार बार वो अपने आप के लिए वो सोचने लगी, तो उसको बहुत गंदा फीलिंग आ रहा था. नाउ गुडनेस, wasn't there anything she could do if only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. अब उसको मैडी को लग रहा है कि काश मैं वांडा से बोल पाती कि मैं तुमसे बिल्कुल कुछ भी मुझे नहीं है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं सिर्फ पैगी को हेल्प इसलिए कर रही हूँ कि वो पूरी मतलब एक्चुअली रियलिटी बता देती कि बिकॉज शी वॉज सपोर्टिंग मैडी, दैट इज़ वाई शी वॉज हेल्पिंग पैगी ना. पैगी को हेल्प क्यों करती थी? क्योंकि वो पैगी मैडी को ड्रेसेस देती थी, उसको हेल्प करती थी हर तरीके से. बट वो वांडा को ऐसे ट्रीट करती थी, वो उसको ज़रा भी पसंद नहीं था. तो अब उसको ये चीज़ें सारी फील हो रही थी. बट पैगी डिड नॉट लुक अप, शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. अब पैगी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे वो दिखा रही थी. शी वॉज जस्ट बिजी इन हर स्टडीज़. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petrinsky. Maybe she had not yet moved away. अब उनको क्या लग रहा कि मैडी को लगा कि भले ही पैगी को चाहे या नहीं चाहे, मैडी को ऐसा लगा कि मुझे वांडा को ढूंढना पड़ेगा, अभी तक तो वो शायद निकली नहीं होगी यहाँ से. तो उसका ये मन था कि मैं उससे जाके मिलूँ. और पैगी तो अपने नीचे देख के बस बिजी थी पढ़ाई में, ध्यान ही नहीं दे रही थी. सी द ड्रेसेस शी हैड मेड, सो ब्यूटीफुल डिज़ाइन ड्रेसेस शी हैड मेड. नाउ स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में जब स्कूल ख़त्म हुआ तो पैगी सेड विद प्रिटेंडिंग कैजुअली, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट. अब पैगी को भी मतलब पैगी बोल रही है ये चीज़ कि अपन जाके देखते हैं कि वांडा यहाँ है या वो छोड़ गई ये जगह, है ना. उनको देखने का इच्छा हो रही थी. तो कहीं अंदर पैगी भी अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही थी कि मैंने उसके साथ गलत किया जो उसको वांडा को छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहा है. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडन एयर ऑन दिस काइंड ऑफ द नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मेल. नाउ ऐसी जगह पे जाना उनको अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि वो लोग अच्छे एरिया में रहते थे. वहाँ पर पॉगिन हाइट्स को सब लोग बहुत गंदा मानते थे, पर फिर भी वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर गए. said I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of anything. अब पैगी क्या बोल रही है रास्ते में जाते जाते मैडी से कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना इस चीज़ को बुरा मान रही है. और बोली मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया. पैगी बोली नाउ दे वर both are actually disturbed that because of them Wanda had to leave. मैडी कुड से नथिंग. अब मैडी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी ना. उनने क्या वो बोला कि पैगी ऐसे क्यों बोली, तो चिढ़ाती तो थी, वो उसको बोलती तो थी, बट येट मैडी वॉज जस्ट क्वाइट एंड शी वॉज लिसनिंग टू पैगी वॉट शी सेइंग. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रिन्स्की लिव, सेड मैडी. अब उनको उसका घर मिल गया, एक छोटा सा वाइट हाउस था वहाँ पर, और वहाँ पर छोटे छोटे किटन्स थे. वो लोग वहाँ गए. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. अब उनको एक उसकी ड्रेस याद थी ना वो ब्लू कलर की, तो उनको वहाँ वो घर में दिखी तो बोला यही उसका घर होगा. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो तो छोड़ गए थे. बट Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around at the backyard and knocked her. Still there was no answer. अब वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था because they might have left. There was no doubt about it. The Petrinsky were gone. How could they ever make amends? They turned slowly and made their very back down the hill. अब उनको क्या लगा, अरे ये तो चले गए. अब उनको मन में क्या था कि हम इसको सॉरी बोल दें या कुछ तो इससे बोले ना, कि ऐसे बिना बात करे बिना कुछ बोले कैसे चले गए लोग. तो उनको they were not feeling well. Well, anyone said Peggy, she's gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for a drawing. She might not even have won the contest otherwise. अब उनको क्या लगा कि मैं बार बार उससे ड्रेसेस की पूछ रही थी तो उसके पास आइडियाज़ आ रहे थे और वो ड्रॉ करती होगी. तो इसी तरह से बोले मेरे पूछने की वजह से उसको आइडियाज़ आए और इसी वजह से वो कंपटीशन जीती. दैट वे पैगी स्टार्टेड थिंकिंग. मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वाज एनीथिंग इन शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैड.
But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined. अब मैडी को क्या हुआ, मैडी जब घर गई, अब वो जब पैगी बोल रही थी ना कि मेरी वजह से कंपटीशन जीती, देखो मैंने उसको आइडियाज़ दिए, तो मैडी जस्ट सुन रही थी और उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहीं दिमाग में उसको आ रहा था कि हमारी वजह से गई है। जब जैसे मैडी घर आई तो वो टेंशन में थी, वो सोच रही थी कि मेरी वजह से एक लड़की यहाँ से छोड़ के उसको जाना पड़ा, और उसके घर के बारे में, उसकी ड्रेसेस के बारे में वो सोचने लग गई। She was never going to stand by and say nothing again. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking and because they were strange name, she speak up, even if it meant losing Peggy's friend. अब मैडी को क्या लगा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर पैगी किसी को चिढ़ाएगी या किसी का मजाक उड़ाएगी या कुछ उनको बोलेगी तो मैं उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बार बार उसको ये गिल्टी महसूस हो रही थी कि मेरी वजह से वांडा यहाँ से छोड़ के चली गई। हालांकि उसका बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उसकी वो ऐसे इंसल्ट करे। सो शी थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन, बिकॉज उसको बार बार ऐसा रहा था कि अब वांडा कहाँ से आएगी और अब उसको सॉरी कैसे बोलेंगे, अब तो हम उसको कुछ बोल ही नहीं सकते। नाउ शी इज़ गॉन फॉर एवर एंड शी फेल्ट वेरी बैड। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, दे वर राइटिंग अ लेटर वांडा पैटर्स की। अब वो लोग वांडा को लेटर लिखने लग गए। देखो इवन पैगी वॉज फीलिंग गिल्टी, दैट मीन्स ना पैगी ने बोला कि अपन उसको लेटर लिखते हैं। दे टोल्ड हर नाउ प्रिटी ड्राइंग, उन्होंने उनको उस पर लेटर में लिखा कि तुमने जो ड्रेसेस बनाई थी वो कितनी प्रिटी थी, और दे हैड मेंट टू से दैट दे वर वेरी सॉरी, और उनको उसको सॉरी भी उन्होंने लिखा। बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, द काइंड दे वुड नेवर हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। अब उन्होंने क्या लिखा, अब उनको एड्रेस तो पता नहीं था, उन्होंने बॉगिन हाइट के एड्रेस पे वहाँ पर डाल दिया, और उन्होंने सॉरी नहीं लिखा, बट उन्होंने ये लिखा कि तुम्हारी ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल थी और तुम ऐसे करके, मतलब उसको ये बताने के लिए कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। Now days passed and there was no answer, but letter did not come back. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You would not blame her. अब उसने क्या बोला, लेटर का जवाब तो आया नहीं और लेटर उनके पास वापस भी नहीं आया, तो इसका मतलब उनको क्या लगा कि शायद वांडा के पास लेटर पहुंच गया होगा, बट वो नाराज़ थी इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। Weeks went by and still Wanda did not answer Peggy and began to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, how many dresses have you got? And before Wanda could press her lips towards in the tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. Now it was Christmas time and there was no snow on the ground. Christmas bells and small trees decorated the ground. On the last day of the school, before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब देखो क्रिसमस टाइम आ गया, ये सारी जब उनके थॉट्स आ रहे थे, पैगी तो सब कुछ भूल गई थी बाद में, बट उसके बाद जब क्रिसमस टाइम आया तो टीचर के पास एक लेटर आया ड्यूरिंग द क्रिसमस इन द मॉर्निंग, एंड शी रेड इट आउट. You remember Wanda Patterson, the gifted letter artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read this letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. अब क्या हुआ, वो लेटर वांडा का आया था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ उसने मुझे लेटर लिखा, टीचर बोल रही है कि अब मैं उसको मेडल दे सकती हूँ फॉर द कॉम्पिटिशन. अब नाउ शी वॉज रीडिंग द लेटर. नाउ what she had written. Dear Miss Mason, how are you in room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress and the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school, and my new teacher does not equalize with me. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Patterns. की देखो उनने ये लेटर लिख दिया कि उसने पैगी के लिए एक ड्राइंग के लिए बोला कि ये वाली कलर की जो पेंटिंग थी वो उसको दे देना पैगी को, और मैडी को ब्लू कलर की दे देना, और उन्होंने बताया कि अब मैं नए स्कूल
में यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड द ड्राइंग्स विद वेरी केयरफुली. ऑल द हाउसेज एड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़. अब उन्होंने वो ड्रेसेज जो उनको गिफ्ट में बोला था देने के लिए वो उन्होंने ले ली पेंटिंग्स और वो लोग चले गए. वांडा ने लिखा कि इनको सबको दे देना क्योंकि मैंने अब और 100 ड्रेसेस बना ली नए हाउस में. एंड आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वो स्टैग्ड एंड इन द विंडो कैंडी पिपरमेंट. अब वो सारा जो डेकोरेशन क्रिसमस का है वो सब वहाँ पर हो रहा था. बॉयज सेड पैगी दिस शोज दैट रियली लाइक्स अस. इट शोज शी गॉट आ लेटर एंड दिस इज हर वे टू सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स इट. आई होप सो सेड मैडी सैडली. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल tight-lipped polished girl again and couldn't ever really make things right between them. She went home and she penned. अब सारा चीज़ उसको पढ़ी तो मिला कि शायद उसने अपने उनको माफ़ कर दिया, मतलब सॉरी उसने बोल दिया और हम लोगों की सॉरी उसने एक्सेप्ट कर ली. एंड हियर बोथ द फ्रेंड्स दे थॉट दे वेंट होम, दे पिन्ड दैट फोटोग्राफ विच वॉज गिवन बाय हर एंड दे फेल्ट दैट अब हम इस लड़की को कभी मिल ही नहीं पाएंगे. नाउ शी इज़ गॉन फॉर एवर एंड वी कांट इवन क्लियर द डाउट्स बिटवीन. हम लोग उसको माफ़ ही नहीं बोल भी नहीं सकते कि वी आर सॉरी फॉर दैट वॉट वी हैव डन. अब वो लोग एकदम रोने जैसे हो गए. वो पिक्चर देख के दे वो जस्ट क्राइंग बोथ ऑफ देम एंड स्टडीड इन द इंटेंटली द कलर्स इन द ड्रेस. अब वो जो कलर्स थे, जो ब्यूटीफुल कलर्स जो वांडा ने लिए थे, नाउ इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. Excitedly she ran over to Peg. She said, "Let me see your picture." "What's the matter?" asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. "Look, she drew you. That's you," she exclaimed, and the head face of it. अब उन्हें देखो जो ड्राइंग बनाई थी ना ड्रेस की और जिसको ड्रेस पहनाई थी वो एक्चुअली उसने मैडी और पैगी का फेस बना के उसको ड्रेस पहनाई थी. See how beautiful her thinking was, and now they really felt bad that what they had done with Wanda. So yes, she must have agreed, Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny. अब उसको बार बार उसके आंखों में आंसू आते थे मैडी के सोच के, और वो इमेजिन करती थी कि वो कैसे अकेली खड़ी रहती थी. हम उस पर तब ध्यान भी नहीं देते थे. So both of them, actually Peggy कहीं पर उसको फील हो रहा था but she was not showing. बिकॉज शी वॉज लाइक मैं हूँ जो भी हूँ. लाइक शी वॉज थिंकिंग दैट मेरे से ज़्यादा स्मार्ट या मेरे जैसा दिखने वाला कोई है ही नहीं. सो शी वॉज लाइक दैट, बट इनसाइड द शी वॉज ऑल्सो फीलिंग बैड. बट मैडी शी कुड फील रियली, हर टीयर्स वर कमिंग आउट एवरी टाइम और थिंकिंग अबाउट वांडा. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द 100 ड्रेसेस.